वेलकम बैक जी मरियम। खबर है कि जाली नाबीना भिखारी मोबाइल इस्तेमाल करने पर हजूम के हत्थे चढ़ गए। धुलाई के बाद पुलिस के हवाले। सर ये कहाँ का किस्सा है? ये नाइजेरिया का। ये भाई साहब कहते हैं कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया जो भिखारी था। मैं उसके साथ 15 मिनट खड़ा हूं सड़क पे, उसने ढेर सारे पैसे कमा लिए और मैनू भी हो गए। हुए होंगे उसे भी। चुनांचे उसे वो स्पॉट पसंद आ गया, जॉब भी पसंद आ गई और जाली नाबीना बन के कहता मैंने कमाना शुरू कर दिया। दिल्ली में 10,000 जो वहां की लोकल करेंसी थी वो कमा लिया करता था। शूमिए किस्मत से एक दिन कहता जाते जाते मेरा मोबाइल बज उठा, तो मैं रुक के साथ नंबर डायल करने लगा। 4-5 लोग मुझे देख रहे थे, तो कहते मुझे नहीं पता चला, तो उन्होंने पकड़ा, पुलिस के पास ले गए। तो ये भी और इसके साथ एक इसका चेला, दोनों जाली नाबीना थे, दोनों पुलिस ने धर लिया। ਅਸੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵੇਚਦੇ ਉੱਥੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ये बाबा तेरा प्यो है? ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਬਜਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। इस घटिया आदमी ने तुम्हें क्या सिखाया होगा? जेब तराशी सिखाई होगी, चोरी, झूठ बोलना। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ बनना ਸਿਖਾਇਆ ਏ। देखा ना, हाय। अल्लाह ने आंखों जैसी नेमत दे के भेजा तो अन्ना बनना, डूब मरो तुम। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। किस पे आई थी पुलिस? ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਾਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਇਆ ਸੀ क्या वैसे गेंडा खाते हो? ਗਹਿਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਆ। ਆਪਕਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ सब इंस्पेक्टर? ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਜੁੱਸਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਮੈਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बड़े बड़े आला मेरे को आए ने जी। चैना तो? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ है? हाँ जी मेरे को गाला ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਜਾਓ। और बात सुनो, जाली नाबीने, ਹਾਂਜੀ मैं तुम्हारे अब्बे की बात कर रहा हूँ। यार खुदा ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਟੀ ਪਵਾਉਣੀ ਹੂੰ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ मोटरसाइकिल लेके ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ मोटरसाइकिल ਲਈ तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦਾ वहां तक चलो मुझे बिठा के जाती है भला ਐਵੇਂ 2.5 किलोमीटर जाके ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ हाँ भी ठीक है ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ ਆਈਦਾ। सर बेतरतीबा ये बाबा खुद ਤੂੰ है। ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। बहुत बेतरतीबा और बेमुर्शदा, बिल्कुल। जो खपरो सांप के बारे में कहते हैं ना, उड़ना और बेमुर्शदा। ਇਹ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੂਟੀ ਵੀ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਡਣਾ ਸਭ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ये जो खपरा होता है ना, ਹਾਂਜੀ वो उड़ना और बेमुर्शदा। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਨਿਓਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਬਿੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਏ ਮੈਂ ਫੱਦਿਆ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਮੋਲ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। अच्छा ये बताओ कब से कर रहे हो ये काम? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਜਨਾਬ। जराइम पेशे यही कहते हैं। वीरू और जय भी यही कहते थे। ਅੱਛਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੀ। ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੈਣ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟੀ ਸਮਝ ਚਾਚਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਬੈਨੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। आपका कभी पुलिस मुकाबला हुआ? एक पुलिस मुकाबला 70,000 पुलिस मुकाबला तुम्हारा काम क्या है पुलिस मुकाबले में? सर हर मुकाबले 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो क्यों? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾਰੇ ਟੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। आपकी एज कितनी है? ਮੇਰੀ 23 ਈਅਰ कितनी? 23 ਈਅਰ 23 तो तुम्हारा कॉलर साइज होगा। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾੜੀ ਹੋ। ਇਹ ਢਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਾਓ 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 ਥੋੜਾ ਤਰੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਢਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ मेरा तुम्हें मशवरा है कि इस मनहूस को, ये जिसने हैट पहना हुआ है, इसे सजाए मौत दिलवाओ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਚੋਣੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਦਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। मैं भैंस बहुत अच्छी चो लेता हूँ और मैं कम से कम 6-7 किलोमीटर चलता हूँ, आज भी चला हूँ। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰ कर। तुम शुक्र करो मेरे हथे नहीं चढ़े। अच्छा अन्ना भी है और उन्हें खुरक भी पई। अच्छा बूटा जी माफ करो, छो। कौन है? किहड़े बूटे माफ करे तेनू? आपका नाम क्या है भाईजान?
दिलबर ਉਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ जनाब हुण माफी लैके दो थोड़ा सा चल फिर के जरा स्ट्रीट पे मांग के दिखाओ। उठो उस्ताद जी ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ हाँ जी ਅੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖੇ ਬੜੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੰਗਣਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ मैंने खैर हूँ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਆਓ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ 6 ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ऐसा बदतमीज है तौबा। ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਘਟੀਆ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈਂਦੇ ਰੋਜ਼ मैं तुमसे लेके जाता हूँ ਕੋਈ पैसे। ਬੰਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तुम्हें तो ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ ਆਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ अच्छा बात सुनो फ्रॉडिये जी जी उधर ऑडियंस की तरफ मत जाओ, इधर आ जाओ। ਐਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕੋਈ 100 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ अच्छा ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਓਏ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ अच्छा ਨਹੀਂ 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 ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਦੀ ਕੇਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ 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 वैसे हर बड़ा काम ला से नहीं से शुरू होता है स्विमिंग है जैसे आप नो करते हैं और आगे बढ़ते हैं ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज आगाज करेंगे मसरूफ से। मसरूफ इजी किसी काम में मशगूल होना, इंगेज हो जाना। इंगेज हो जाना सिर्फ मंगनी नहीं होती, आहो मैं वही कहने लगी सा वो असल में मसरूफ कहते हैं खर्च हो जाने को, कि बस सर्फ हो जाना। जी मसलन रुपया, दौलत, पैसा, ये मसरूफ हैं, ये सर्फ होती हैं। अब दौलत, दौलत बहुत इंटरेस्टिंग एटिमोलॉजीज की। दौलत क्या है? पैसे 1000 रुपये ਦਾ ਨੋਟ 500 ਦਾ ਨੋਟ अच्छा, 5000 की तरफ वो अभी तक गया ही नहीं। आए, आए, आए। दौलत उस चीज को कहते हैं जो आज इसके हाथ में है, कल उसके हाथ में, फिर इसके हाथ में। वो किसी एक जगह परमानेंट नहीं रहती। दौलत उस्मानिया हुकूमत, दौलत अब्बासिया बैंक, दौलत पाकिस्तान, तो ये वो चीज है जो इधर उधर चलती फिरती रहती है। इसका जो मसरफ है वो मसरूफ। मतलब चाहे वक्त हो चाहे दौलत हो चाहे हेलो सब बाकी खर्च साहब होते वो 10 रहे एक मिनट राजो मैं बताता हूँ मसरूफ वक्त बुटाना वो मुझसे बेहतर बताते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन। मैं लाहौर की हर यूनिवर्सिटी में एज विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ यूनिवर्सिटी 'ਚ ਵੀ पढ़ते ये रहे मास्टर अब्दुल्ला के पर्सनल फ्रेंड हुआ करते थे। हम हैरान होते थे, मोटरसाइकिल पे लेके फिरते थे। मैं 2-3 बार मास्टर अनायत को भी मिल के आया हूँ वो आखिरी उम्र में थे बेचारे ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ओ यार तुम कौन हो बाण ढोम दाढ़ी ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਂ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ओए, हबीब बैंक का वाइस चांसलर कैसे हो ਉਹ सकता यूनिवर्सिटी ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ है? ये सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कहना चाहता था, इसने ओहदा यूनिवर्सिटी का दे दिया लेकिन इदारा बैंक बना दिया। ऐसे आडू अगर आप वाकई होते वाइस चांसलर कोई ऐसी बात नहीं इंसान ही होते हैं मैं आपकी बात कर रहा हूँ अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है आज अनाड़ी। पहला सी एक ही सी ये तो ऐसे ही सबसे पहले डिस्कशन में थोड़ा सा फ्लेवर नहीं होता स्टार्टर के तौर पे। सर चक्कर ना दिया करो मतलब एक लफ्ज तुसी चोरी चोरी कर लेंदे हो अच्छा जनाब, अनाड़ी, अनाड़ी क्या है? राज कपूर की फिल्म सर। शंकर जयकिशन, क्या शानदार उसके गाने हैं। ये चांद खिला वो तारे हंसे, फिर सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। ना सीखी होशियारी। सर एक और गाना इसका बड़ा शानदार। तेरा जाना, तेरा जाना प्लीज उसे जाने दो, और मेरे को भी 27 सुन लवो वो इसी वजह से गया है। गाना शुरू किया मैं दौड़ ला अच्छा जनाब, अनाड़ी की एटिमोलॉजी बहुत दिलचस्प है सर किसी काम को ना जानने वाला और ये पता है कितनी पुरानी है? 4000 साल पुरानी बात है ये। ਨਾੜੀ जब आर्या कौम या- यहाँ पे आई सब कॉन्टिनेंट में, तो आर्यंस अपने आप को सबसे ज्यादा महज़ब, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, जरी, खूबसूरत, क्योंकि सफ़ेद इनकी रंगत थी, गंदमी और सफ़ेद, फिर पॉइंटेड नोज थे इनके और काले बाल,
फिर जंगजू थे, शिकारी थे, ज्यादातर डकैत थे। हाँ जी, क्योंकि कब्जा किया यहाँ पे आके उन्होंने। बिल्कुल। और इन्होंने मुकामी द्राविड़ी कौम को, जिस बेचारी को दहकानी के अलावा, फार्मिंग के अलावा आता कुछ नहीं था, मौसीकी के अलावा उनके पास था कुछ नहीं, उन्हें मार कुट के इन्होंने जनूब की तरफ धकेल दिया। तो फिर उन्होंने रिबेल भी किया, रिएक्ट किया। रेजिलियंस उस वक्त से इस इलाके में पाई जा रही है। देखिए, यूसर्पर्स और रेबल्स इकट्ठे इस इलाके का खासा बन गए। अच्छा, तो ये नॉन आर्यन को महजब समझते ही नहीं थे। तो आर्या और एक था अनार्या, अन लगा दिया उसके आगे। अच्छा, पढ़, उससे पहले अन लगा दो। अनपढ़। अनपढ़, गिनत, उससे पहले अनगिनत। अनगिनत। आर्या, अनार्या। यानी अरब और अजम वाला है कि ये सब अजमी है। अजमी के बारे में गलतुल-आम यह है कि वो गूंगा है, हालांकि यह है कि वो लुकनत वाला है, गूंगा नहीं है। तूतला है। जाहिर है फसाहत के मुकाबले में लुकनत ज़्यादा कहना दूसरे को। सानू पहले समझ नहीं आउंदी तो तू अपनी फारसी विच पा दे। अच्छा, अजमी नहीं, अजमी। अजमी। आर्यन जब आए उन्होंने टाड़ियों को बड़ा कुटा है इधर। अच्छा, फैसल अजमी याद आया हमें, जानते हैं आप? जी बिल्कुल। फैसल अजमी हमारे उन बुजुर्ग दोस्तों में से एक हैं जो बड़ा शायर बनने के इम्कानात उनमें थे, वो बनते बनते रह गए। क्या अच्छा, एक उनका शेर याद आ रहा है। जी जी, तकिया है, मुसल्ला है, कुतब खाना है, और रहना सहना तेरे दरवेश का शाहाना है। बाकी साहब च ना फौरन एक मूर्त आ जाती है, रहना तेरा आशियाना है। इसकी जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है इसके आगे है ही नहीं कि वैसे गुफ्तगू- इमेजिनेशन अगर आपने फैसल अजमी की डिस्कस करनी तो मैं एक शेर अगर इजाजत हो तो बिस्मिल्लाह। पेश जी कर। जी, अर्ज अनाज। सोचता ही रहता हूँ वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। कितना खूबसूरत शेर क्या है, अथॉरिटी वाला लग रहा है। सोचता हूँ कि ये आसमान, ओके, छोटा सा एक तकिया हो, एक खेसी हो, छोटा जा चाय का कप हो। कहते हैं संग मत फेंक, ठहरने दे जरा पानी को, वरना इस झील में महताब नहीं आएगा। बाकी साहब आखिरी जुमला कह दे जरा। खेसी ना उतार, ऊपर से को आ जाएगा। 30 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूँ और मुझे इस किस्म की लग़वियात कभी नहीं सुनने को मिली। इसलिए कि आपने कभी हनी जैसे भांड के साथ बैठ के शेर पढ़ा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हनी के पास बैठना, तो उस वक्त तो आप यकीन कीजिए मैं बड़ा मोहतात होता हूँ। बहुत जी। ये मेरी जान नहीं छोड़ता हकीम। ये चलिए नाड़ी। चुनाचे अनारिया जो है वो आर्या का मुतजाद हो गया, उसका एंटोनम हो गया, और इसका ताल्लुक चूंकि मकामी लोगों के साथ था, वो थे द्राविड़ी। ये दुनिया की पहली कौम थी जिसने अड़े डिस्कवर भी की, इन्वेंट भी की और यूज भी की। तो जब उनसे पूछा जाता और तुम आर्या हो, तो वो कहते नहीं जनाब हम अनाड़िया हैं। तो जब उसका एडजेक्टिव बना सिंगुलर के लिए तो वो अनाड़ी कहलाने लगा। नाड़ी पे कोई शेर। नाड़ी पे आपने कभी बकरी पे शेर कहा है? अल्लामा साहब ने बिल्ली पे भी की, गोद में बिल्ली देखकर, डॉट्स हैं वहां पे, नाम नहीं लिया हुआ, गोद में बिल्ली देखकर। ये तुझको दुज़दीदा निगाही ये सिखा दी किसने, रम्ज आगाज़े मोहब्बत की बता दी किसने। मैनू शेर ते कोई तराज है जेड़ा आखिर देंदे ने किसने। मैं सो रहा था बेल बजाई किसने। अच्छा जनाब, अगला लफ्ज है भद्दा। बदसूरत, बदसूरत, बदनुमा, बदशक्ल, बदहैत। बदहैत। लेकिन असल में भद्दा पता किसको कहते हैं? तो सर इंतहाई मुहज्जब, शाइस्ता, खूबसूरत और अमीर। लाहौल वाला कुव्वतुल्लाह। व्हाट अ कमेंट। ये भी आर्यंस में एक इंतहाई आला दर्जे की एक गोत है आर्यंस के अंदर, भद्दर। भद्दर, भद्दर से भद्दा। क्या भद्दा गुलाब है, क्या भद्दी शक्ल पाई है, क्या भद्दा लिबास है। वाह वाह वाह, लादी किस्मी दी दसनियां देखो, मैनू पद्दा चंगा लगन लग पिया। अदा नहीं किया उन्होंने।
भद्दा ਉਹ ਭੱਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਭੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ पंजाबी में पद्दा ही होगा। भे को पंजाबी पे कर देता है, पे पप्पा। घे को के कर देता है, कक्का। ये मैं आपको लेटर्स बता रहा हूं, ये पंजाबी के लेटर्स हैं। ये पप्पा, कक्का, नन्ना, रूड़ा, राड़ा। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਊੜਾ यहाँ पे बदसूरत को भद्दा क्यों कहते हैं सर? अब यही तो मजे की बात है कि हुआ क्या होगा। हाँ जी ਇਹ ਆਇਆ ਜੋ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ अब हुआ ये होगा कि भद्दा जो है ना, मोस्टली अशराफिया से इसका ताल्लुक था। आपको ये भी पता है कि अशराफिया वाले बनती नहीं है इनकी आम लोगों के साथ, तो किसी आम से आदमी के साथ किसी भद्दे का झगड़ा हो गया होगा, ਭੱਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ उसने बुरी सी शक्ल बना के कहा होगा, ਐਡਾ ਤੂੰ ਭੱਦਾ ਬਾਦ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ मतलब बड़ा भद्दा तो देखो, हाँ। यानी बड़ा नवाब तो देखो। अब सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा। बिगाड़ देखिए बुद्धू। अब बुद्धू कहते हैं कि बुद्धू जो नालायक होता है, बेवकूफ होता है, वो बुद्धू कहते हैं जो इंतहाई जीरक और ज़हीन हो। बुद्धिमान। बुद्धिमान से है। ये भी दिलचस्प बात है कि क्या हुआ होगा कि बुद्धू बदनाम हो गया, मातूब हो गया। अब क्या वजह थी ये ज्यादा बेड़ा गर्क होता है जब एक वसी इलाका हो जिसमें भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग हों, और खास तौर पे पंजाबियों ने अपनी बड़ी मनमानी की हुई है। अब बुद्धू का जो एंटोनम था वो अबुद्धू है। अबुद्धू असल लफ्ज अबुद्धू है। अलिफ लग जाने से उसका मुतजाद हो जाता है, यानी मर अमर अमर हो गया। टूट अटूट। ये बेशुमार अल्फाज हैं जिनकी एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज टाइम थोड़ा है, मैंने विलन भी डिस्कस करना था। विलन विलन क्या है? राक्षस। जबकि विलन सादा देहाती विलेज से विलन है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਝੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ विलेज क्या है? विलेज विलाज से, जहां जुड़े हुए साथ साथ घर जुड़े होते हैं ना, वो विलाज। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਲਾਸ ਹੈ पर सर विले ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ। लेकिन विला छोटा भी होता है, विला बड़ा भी होता ਇਹ है। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ हकीम साहब आप भी पढ़े लिखे हैं ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ हकीम साहब आप क्यों नहीं पढ़ सके बताएं तो सही आज यार शुक्र है अल्लाह का इतना वक्त जाया करके समुद्रों का पानी काला है क्या काले तुमने- पानी वाला समंदर कौन सा है भला? दसो जी बहरे अस्वद किसको कहते हैं? बहरे अस्वद है ना कितना ही उसके आगे किनारे पे कोई मशहूर शहर ही बता दो। ब्लैक सी बैरूत। इन्होंने आधा किलो बैरूत ले ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਾ ਕੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ अच्छा जी, आज का शेर। ये बात जफर इकबाल साहब कहते हैं, वैसा है आज तक भी तेरा हुस्न बेअमा। अरे वाह। वैसा है आज तक भी तेरा हुस्न बेअमा, वरना कहीं भी एक सा मौसम नहीं रहा। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज आगाज करेंगे मसरूफ से। मसरूफ इजी किसी काम में मशगूल होना, इंगेज हो जाना। इंगेज हो जाना सिर्फ मंगनी नहीं होती, आहो मैं वही कहने लगी सा। वो असल में मसरूफ कहते हैं खर्च हो जाने को, कि बस सर्फ हो जाना। जी मतलब रुपया, दौलत, पैसा, ये मसरूफ है, ये सर्फ होती है। अब दौलत, दौलत बहुत इंटरेस्टिंग एटिमोलॉजी इसकी। दौलत क्या है? पैसे, हजार रुपये। का नोट 500 का नोट अच्छा, 5000 की तरफ वो अभी तक गया ही नहीं। आए, आए, आए। दौलत उस चीज को कहते हैं जो आज इसके हाथ में है, कल उसके हाथ में, फिर इसके हाथ में। वो किसी एक जगह परमानेंट नहीं रहती। दौलत उस्मानिया हुकूमत, दौलत अब्बासिया बैंक, दौलत पाकिस्तान, तो ये वो चीज है जो इधर उधर चलती फिरती रहती है। इसका जो मसरफ है वो मसरूफ। मतलब चाहे वक्त हो, चाहे दौलत हो, चाहे हेलो सब बाकी साहब वो दस रहे हैं एक मिनट राजो मैं बताता हूँ मसरूफ वक्त बताना वो मुझसे बेहतर बताते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन।
मैं लाहौर की हर यूनिवर्सिटी में एज विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾल्लुक है। मास्टर अब्दुल्ला दी यूनिवर्सिटी च भी पढ़ते ये मास्टर अब्दुल्ला के पर्सनल फ्रेंड हुआ करते थे, हम हैरान होते थे, मोटरसाइकिल पे लेके फिरते थे। मैं 2-3 बार मास्टर अनायत को भी मिल के आया हूँ, वो आखिरी उम्र में थे बेचारे। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ओ यार तुम कौन हो बाण ढोम दाढ़ी? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਂ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ओए, हबीब बैंक का वाइस चांसलर कैसे हो ਉਹ सकता यूनिवर्सिटी ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ है? ये सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कहना चाहता था, इसने ओहदा यूनिवर्सिटी का दे दिया लेकिन इदारा बैंक बना दिया। ऐसे आडू अगर आप वाकई होते वाइस चांसलर, कोई ऐसी बात नहीं, इंसान ही होते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है आज अनाड़ी। पहला सी एक ही सी। ये तो ऐसे ही सबसे पहले डिस्कशन में थोड़ा सा फ्लेवर नहीं होता स्टार्टर के तौर पे। सर चक्कर ना दिया करो, मतलब एक लफ्ज तुसी चोरी चोरी कर लेंदे हो। अच्छा जनाब, अनाड़ी, अनाड़ी क्या है? राज कपूर की फिल्म सर। शंकर जयकिशन, क्या शानदार उसके गाने हैं। ये चांद खिला वो तारे हंसे, फिर सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। ना सीखी होशियारी। सर एक और गाना इसका बड़ा शानदार। तेरा जाना, तेरा जाना। प्लीज उसे जाने दो, और मेरे को भी 27 सुन लवो। वो इसी वजह से गया है। गाना शुरू किया मैं दौड़ ला। अच्छा जनाब, अनाड़ी की एटिमोलॉजी बहुत दिलचस्प है। सर किसी काम को ना जानने वाला। और ये पता है कितनी पुरानी है? 4000 साल पुरानी बात है ये। नाड़ी। जब आर्या कौम या- यहाँ पे आई सब कॉन्टिनेंट में, तो आर्यंस अपने आप को सबसे ज्यादा महज़्ज़ब, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, जरी, खूबसूरत, क्योंकि सफ़ेद इनकी रंगत थी, गंदमी और सफ़ेद, फिर पॉइंटेड नोज थे इनके, और काले बाल, फिर जंगजू थे, शिकारी थे, ज़्यादातर डकैत थे। हाँ जी। क्योंकि कब्जा किया यहाँ पे आके उन्होंने। बिल्कुल। और इन्होंने मुकामी दरावड़ी कौम को, जिस बेचारी को दहकानी के अलावा, फार्मिंग के अलावा आता कुछ नहीं था, मौसीकी के अलावा उनके पास था कुछ नहीं, उन्हें मार कुट के इन्होंने जनूब की तरफ धकेल दिया। तो फिर उन्होंने रिबेल भी किया, रिएक्ट किया। रेजिलियंस उस वक्त से इस इलाके में पाई जा रही है। देखिए यूसर्पर्स और रेबल्स इकट्ठे इस इलाके का खासा बन गए। अच्छा, तो ये नॉन आर्यन को महज़्ज़ब समझते ही नहीं थे, तो आर्या, आर्या, और एक था अनार्या, अन लगा दिया उसके आगे। अच्छा। पढ़, उससे पहले अन लगा दो। अनपढ़। अनपढ़। गिनत, उससे पहले अनगिनत। अनगिनत। आर्या, अनार्या। यानी अरब और अजम वाला है कि ये सब अजमी है। अजमी के बारे में गलतुल आम यह है कि वो गूंगा है, हालांकि यह है कि वो लुकनत वाला है, गूंगा नहीं है। तूतला है। जाहिर है फसाहत के मुकाबले में लुकनत ज़्यादा कहना दूसरे को। सानू पहले समझ नहीं आउंदी तो तू अपनी फारसी विच पा दे। अच्छा, अजमी नहीं, अजमी। अजमी। आर्यन जब आए उन्होंने टाड़ियों को बड़ा कुटा है इधर। अच्छा, फैसल अजमी याद आया हमें, जानते हैं आप? जी बिल्कुल। फैसल अजमी हमारे उन बुजुर्ग दोस्तों में से एक हैं जो बड़ा शायर बनने के इम्कानात उनमें थे, वो बनते बनते रह गए। क्या अच्छा, एक उनका शेर याद आ रहा है। जी जी। तकिया है, मुसल्ला है, कुतब खाना है, और रहना सहना तेरे दरवेश का शाहाना है। आगे साहब च ना फौरन एक मूर्त आ जाती है। रहना तेरा आशियाना है। इसकी जो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है इसके आगे है ही नहीं। वैसे इमेजिनेशन अगर आपने फैसल अजमी की डिस्कस करनी, तो मैं एक शेर अगर इजाजत हो तो बिस्मिल्लाह। पेश जी कर जी अर्ज अनाज। सोचता ही रहता हूँ वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। कितना खूबसूरत शेर क्या है, अथॉरिटी वाला लग रहा है। सोचता हूँ कि ये आसमान, ओके, छोटा सा एक तकिया हो, एक खेसी हो, छोटा जा चाय का कप हो। कहते हैं संग मत फेंक, ठहरने दे जरा पानी को, वरना इस झील में महताब नहीं आएगा। आगे साहब आखिरी जुमला कह दे जरा। एसी ना उतार, ऊपर से को आ जाएगा। 30 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूँ और मुझे इस किस्म की लग़वियात कभी नहीं सुनने को मिली। इसलिए कि आपने कभी हनी जैसे भांड के साथ बैठ के शेर पढ़ा?
बिल्कुल नहीं। तो फिर हनी के पास बैठना तो उस वक्त तो आप यकीन कीजिए मैं बड़ा मोहतात होता हूं। बहुत जी। ये मेरी जान नहीं छोड़ता हकीम। ये सजी अनाड़ी। चुनाचे अनारिया जो है वो आर्या का मुतजाद हो गया, उसका एंटोनम हो गया, और इसका ताल्लुक चूंकि मकामी लोगों के साथ था, वो थे द्राविड़ी। ये दुनिया की पहली कौम थी जिसने अड़े डिस्कवर भी की, इन्वेंट भी की और यूज भी की। तो जब उनसे पूछा जाता और तुम आर्या हो, तो वो कहते नहीं जनाब हम अनाड़िया हैं। तो जब उसका एडजेक्टिव बना सिंगुलर के लिए तो वो अनाड़ी कहलाने लगा। नाड़ी पे कोई शेर। अनाड़ी पे आपने कभी बकरी पे शेर कहा है? अलामा साहब ने बिल्ली पे भी की, गोद में बिल्ली देखकर, डॉट्स हैं वहां पे, नाम नहीं लिया हुआ, गोद में बिल्ली देखकर। ये तुझको दुस्दीदा निगाही ये सिखा दी किसने, रम्ज आगाज़े मोहब्बत की बता दी किसने। मैनू शेर ते कोई इतराज है जेड़ा आखिर देंदे ने किसने। मैं सो रहा था बेल बजाई किसने। अच्छा जनाब, अगला लफ्ज है भद्दा। बदसूरत। बदसूरत, बदनुमा, बदशक्ल, बदहैत। बदहैत। लेकिन असल में भद्दा पता किसको कहते हैं? तो सर इंतहाई मुहज्जब, शाइस्ता, खूबसूरत और अमीर। लाहौल वाला कुव्वत। व्हाट अ कमेंट। ये भी आर्यंस में एक इंतहाई आला दर्जे की एक गोत है आर्यंस के अंदर, भद्दर। भद्दर, भद्दर से भद्दा। क्या भद्दा गुलाब है, क्या भद्दी शक्ल पाई है, क्या भद्दा लिबास है। वाह वाह वाह। लारी किस्मी दी दसनियां देखो, मैंने भद्दा चंगा लगन लग पिया। भद्दा नहीं किया उन्होंने, भद्दा। वो भद्दा उर्दू से, भद्दा पंजाबी से। पंजाबी में भद्दा ही होगा। भे को पंजाबी पे कर देता है, पे, पप्पा। घे को के कर देता है, कक्का। ये मैं आपको लेटर्स बता रहा हूं, ये पंजाबी के लेटर्स हैं। ये पप्पा, कक्का, नन्ना, रूड़ा, राड़ा। ये तो इस तरह जिवें गूंगे नूं ठंड लग रही ऊड़ा। यहाँ पे बदसूरत को भद्दा क्यों कहते हैं सर? अब यही तो मजे की बात है कि हुआ क्या होगा। हाँ जी, ए आया जो तीजा मसला। अब हुआ ये होगा कि भद्दा जो है ना, मोस्टली अशराफिया से इसका ताल्लुक था। आपको ये भी पता है कि अशराफिया वाले बनती नहीं है इनकी आम लोगों के साथ, तो किसी आम से आदमी के साथ किसी भद्दे का झगड़ा हो गया होगा, भद्दे ने कोटिया होना, उसने बुरी सी शक्ल बना के कहा होगा एडा तो भद्दा बाद शक्ल ना हुए थे, मतलब बड़ा भद्दा तो देखो, यानी बड़ा नवाब तो देखो। अब सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा। बिगाड़ देखिए बुद्धू। अब बुद्धू कहते हैं कि बुद्धू जो नालायक होता है, बेवकूफ होता है, वो बुद्धू कहते हैं जो इंतहाई जीरक और ज़हीन हो। बुद्धिमान, बुद्धिमान से है। ये भी दिलचस्प बात है कि क्या हुआ होगा कि बुद्धू बदनाम हो गया, मातूब हो गया। अब क्या वजह थी? ये ज्यादा बेड़ा गर्क होता है जब एक वसी इलाका हो जिसमें भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग हों, और खास तौर पे पंजाबियों ने अपनी बड़ी मनमानी की हुई है। अब बुद्धू का जो एंटोनम था वो अबुद्धू है। अबुद्धू असल लफ्ज अबुद्धू है। अलिफ लग जाने से उसका मुतजाद हो जाता है, यानी मर अमर, अमर हो गया। टूट, अटूट। ये बेशुमार अल्फाज हैं जिनकी एटिमोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज टाइम थोड़ा है, मैंने विलन भी डिस्कस करना था। विलन, विलन क्या है? राक्षस। राक्षस। जबकि विलन सादा देहाती विलेज से विलन है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਝੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? विलेज क्या है? विलेज विलाज से, जहां जुड़े हुए साथ साथ घर जुड़े होते हैं ना, वो विलाज। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਲਾਸ ਹੈ। पर सर विले ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ। लेकिन विला छोटा भी होता है, विला बड़ा भी होता ਇਹ है। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ। हकीम साहब आप भी पढ़े लिखे हैं? अल्लाह तो रहम मांगे, मैं पागल हाँ। हकीम साहब आप क्यों नहीं पढ़ सके, बताएं तो सही आज। यार शुक्र है अल्लाह का, इतना वक्त जाया करके समुद्रों का पानी काला है। काले पानी वाला समंदर कौन सा है भला? दसो जी। बहरे अस्वद किसको कहते हैं? बहरे अस्वद है ना, कितना उसके किनारे पे कोई मशहूर शहर ही बता दो।
ब्लैक सी बैरूत इन्होंने आधा किलो बैरूत ले ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਾ ਕੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ अच्छा जी, आज का शेर ये बात जफर इकबाल साहब कहते हैं, वैसा है आज तक भी तेरा हुस्न बेअमा। अरे वाह वैसा है आज तक भी तेरा हुस्न बेअमा, वरना कहीं भी एक सा मौसम नहीं रहा।